तालियों के साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का स्वागत करें। अभी मैं ब्रांच सेक्रेटरी सुब्रत भौमिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे झपके चहीते डिविजनल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज यूनियन सुजीत मिश्रा जी को मंच पे लाए। वंदे मातरम। सुजीत मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। सुजीत मिश्रा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मुनीन से कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वंदे मातरम वंदे मातरम। केंद्रीय विभागीय नेतृबृंद, शाखार विभिन्न पदाधिकारी এবং সদস্যদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। গত বিভিন্ন অভাব অভিযোগ পূরণের যথাসম্ভব চেষ্টা করি, কিছু সম্পাদন করতে পারি, কিছু করতে পারি না। কিন্তু 2021 সালে কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আমার পক্ষে কাজ করা একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল, সেই জন্য সব কর্মচারীদের সাথে আমি যোগাযোগ সেভাবে রাখতে পারিনি। এটা আমার বড় ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতা থেকে উঠে আসার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করছি। হাসিমারার কিছু সমস্যা এখনো রয়েছে, এই সমস্যাগুলির মধ্যে মেইনলি কোয়ার্টার সমস্যা। পুরোনো যেসব কোয়ার্টার রয়েছে সেইসব কোয়ার্টারগুলি থাকার যোগ্য। সাধারণ কর্মচারীরা যেসব পুরোনো কোয়ার্টারগুলিতে থাকছে, আমার অনুরোধ যে এই মঞ্চ থেকে অনুরোধ করছি যে সেই পুরাতন কোয়ার্টারগুলিকে অ্যাবান্ডন করে নতুন কোয়ার্টার তৈরি করা হোক এবং কর্মচারীরা সুস্থ হোক। গেট লজগুলি জলের সমস্যা, গেট লজগুলির জলের সমস্যা আজকের নয়, সেই পুরোনো সমস্যা, বহুদিনের সমস্যা। ডিপটিউবল বসানো হয়েছে রেল দপ্তর থেকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ডিপটিউবলের জল পান করার যোগ্য নয়। আমার আশা যে এই বক্তব্য এই সম্মেলনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে। হাসিমারা শাখার সবচেয়ে পুরোনো একটি দাবি, যে দাবি এই মঞ্চ থেকে আমি আবার বলতে যাচ্ছি, যে হাসিমারা শাখার আয়তন বৃদ্ধি। হাসিমারা শাখার আয়তন দমনপুর থেকে দলগাঁও পর্যন্ত। আমার অনুরোধ যে হাসিমারা শাখাকে বিন্যাগুড়ি পর্যন্ত, বানারহাট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এর বিশেষ কতগুলি কারণ আছে। বানারহাট ওয়াটার রিপেয়ারিং এসএসসি ওয়ার্কস হাসিমারা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রশাসনিক শাখা, প্রশাসনিক কাজকর্ম যা আছে সেটা পরিচালিত হয় AEN ওয়েস্ট এপিডিসের মাধ্যমে, যা কিনা সরাসরি হাসিমারা ব্রাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। হাসিমারা ব্রাঞ্চ সেক্রেটারির পক্ষে কাজ করতে আরো সুবিধা হবে, এই জন্য এটাকে বানারহাট পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন জানান। বিগত বছরগুলিতে ইউনিয়নের কাজকর্মে ইউনিয়নের সদস্য এবং পদাধিকারীরা মোটামুটি ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু আমি আশা করছি নতুন কমিটি যে হবে সেই কমিটিকে আরো সহযোগিতা করবেন, যাতে হাসিমারা শাখার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আগামী দিন আমাদের সিক্রেট ব্যালট ইলেকশন হওয়ার কথা বলছি, খুব সম্ভবত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে হবে। সেই ইলেকশনে আপনারা সকলে মিলে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নকে 1 নম্বর স্থানে নিয়ে যাবেন এবং ট্রেড ইউনিয়নকে ধ্বংস করে। আগামী দিনে হাসিমারা শাখার সংগ্রামী চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নতুন কমিটি গঠন করে, সেই কমিটিকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করে হাসিমারা এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সংগ্রামী ভাবমূর্তিকে বজায় রেখে আবেদন জানাই সবার কাছে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।
और इसी बीच हमारे बीच आके उपस्थित हुए हैं एनएफएलओ एम्प्लॉयज यूनियन के बिजन देवराय आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है बिजन देवराय आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। और साथ ही हमारे सेंट्रल के ऑफिस बेयरर श्री अंजन आचार्य जी महोदय आज बहुत दिन बाद में मैंने हाशिमारा आने का मौका मिला है। जब हमारा यूनियन ऑफिस था उसी ऑफिस में मैं जब डिविजनल सेक्रेटरी था अलीपुरद्वार डिवीजन का, उसी टाइम में बहुत दफे हम हाशिमारा जुरिडिक्शन का जो एरिया में हम आने का कोशिश किया है, मिलने का कोशिश किया है। लेकिन आज जितना भी स्टाफ है मेरा अमल का है नहीं, मेरा समय का है नहीं। आप लोग मेरे बाद में आप लोग आए हैं, हमारे बाद हमारे डिविजनल सेक्रेटरी वर्तमान डिविजनल सेक्रेटरी सुजीत मिश्रा आप लोग को दायित्व लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। जो हमको उनको बारे में जानकारी है वो हर ब्रांच में हर सेक्शन में जाने का कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा टाइम जानता है डिविजनल सेक्रेटरी का साइज बचपन से मेरा मित्र है, कारण माइक बड़ा होना चाहिए था, वो नहीं किया, इसके बाद ये गलती नहीं होना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, हमारे सभी दिलों के धड़कन, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुनीन सैकिया जी उपस्थित हैं। हमारे सैकिया साहब के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली से उनका स्वागत होना चाहिए। ये बहुत हर्ष की बात है कि जिस लेवल का मीटिंग हमारे सैकिया साहब अटेंड करते हैं, शायद हासीमारा ब्रांच छोटा है तो हमारा थोड़ा संख्या कम है, लेकिन मैं आपको गर्व के साथ बोलता हूं कि हासीमारा ब्रांच का मैंने इससे पहले भी बहुत सारा मीटिंग अटेंड किया और इस बार का संख्या पिछले बार से बहुत अच्छा है, इसलिए मैं हासीमारा के हर एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट बिजन देवराय जी यहाँ पर उपस्थित है, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे सेंट्रल के वाइस प्रेसिडेंट अंजन आचार्य जी उपस्थित है। हमारे सभी डिवीजन के पदाधिकारीगण, अलीपुरद्वार ब्रांच से आए हमारे सभी ब्रांच के पदाधिकारीगण और हासीमारा ब्रांच के ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और उनके सभी पदाधिकारीगण, अति हर्ष और उल्लास के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष 2-4 शब्द बोलने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो वक्तव्य शुरू करने से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, और सबसे बड़ा बात है कि आने वाले दिनों में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की जो इलेक्शन होने वाली है, उस इलेक्शन में महत्वपूर्ण रेलवे बोर्ड में क्या क्या निर्णय हुए हैं, क्या क्या डिस्कशन है, क्या क्या आने वाले दिनों में एनएफएलओ एम्प्लॉयज यूनियन या एनएफआईआर का एजेंडा है, इन सब विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा हमारे माननीय आज के मुख्य वक्ता हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी करेंगे। मैं बस आप लोगों से 2-4 शब्द शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि एनएफएलओ एम्प्लॉयज यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी के पदभार लेने के बाद मैंने ये सोचा कि रेलवे एम्प्लॉय का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों को याद होगा रोटी कपड़ा मकान एक फिल्म था, तो लोग बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि पीने का पानी जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जो दिन रात अपने आप को निछावर करके रेलवे की परिसेवा में अपने आप को निपुणता के साथ लगा के उसके बाद भी जब रात में लौटते हैं तो उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। इस पीने के पानी के ऊपर हमने बहुत बड़ा कार्रवाई किया और लगभग पूरे डिवीजन में 60 to 70% जगहों पर हमने पीने के पानी का बंदोबस्त कराया। बट जो वार है हैज नॉट बीन ओवर। जब तक 100% रेलवे कर्मचारियों के घर में पोर्टेबल वाटर हम नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा प्रण खत्म नहीं होगा। ये एम्प्लॉयज यूनियन का कमिटमेंट है, इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बैठा हुआ वो शख्स मुनीन सैकिया जी है, जिन्होंने चिकित्सा में
एक आमूल परिवर्तन लाया। आप जानते हैं कि मेदांता हॉस्पिटल के साथ एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का द्वारा जो पीएनएम आइटम था, उसमें जीएम साहब के पीएनएम में हम लोगों ने मेदांता से डायरेक्ट मालीगांव हॉस्पिटल का टाई अप करवाया, जो आज उससे बहुत सारे रेलवे हॉस्पिटल रेलवे बेनिफिशियरीज उससे बेनिफिट हो रहे हैं। और आपके ज्ञातार्थ के लिए बोलते हैं, हम जनरल सेक्रेटरी साहब के नजर में भी देना चाहते हैं कि हमने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन पेशेंट को बोला जाता है कि आप मालीगांव जाओ, आप भर्ती हो, उसके बाद आपको रेफर किया जाएगा। जबकि डॉक्टर जो है सीनियर डीएमओ यहाँ भी है, सीनियर डीएमओ मालीगांव में भी है। अगर कोई पेशेंट है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जिसका ब्रेन ट्यूमर का केस है, ऐसे केसेस को 3 दिन मालीगांव में ना भेज के उसको अलीपुरद्वार से डायरेक्ट रेफरल विद अप्रूवल ऑफ जीएम ये कर सकते हैं कि नहीं सीएमडी। इस बारे में हमने जीएम साहब को मेमोरेंडम डाला और जीएम साहब ने कैटेगरी के लिए एग्री किया। और अगर ये सक्सेस होता है तो अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए एक इतिहास होगा कि हम लोगों का जो मेजर केसेस है हम डायरेक्टली किसी नर्सिंग होम में अलीपुरद्वार हॉस्पिटल से रेफर कर सकेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हर एक रेलवे एम्प्लॉय की आवश्यकता है, हर एक रेलवे एम्प्लॉय का नीड ऑफ द आवर है। और हमारे जनरल सेक्रेटरी को हमने चाहे थे राम साहब जनरल मैनेजर को ये बोलते हुए सुना था कि सर एक जनरल मैनेजर को चिकित्सा जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, एक ट्रैक मेंटेनर को भी वही फैसिलिटी मिलना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा में ना कोई जनरल मैनेजर होता है ना ट्रैक मेंटेनर होता है। चिकित्सा होता है, एक डॉक्टर एक पेशेंट का चिकित्सा करता है और हर एक को समान अधिकार मिलना चाहिए। रेलवे हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट के लेवल में आज जो एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिस कदम को और आगे लेके हम ऐसा आमूल परिवर्तन लाएंगे कि हमारे रेलवे एम्प्लॉय उनके परिवार के ट्रीटमेंट के लिए उनको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन को है। रही बात रेलवे क्वार्टर की, तो रेलवे क्वार्टर में हासीमारा में आपने देखा होगा कि आज मैं ये सुना लोग बोले क्वार्टर की जरूरत है। मैं जिससे पहले मीटिंग में आया था तो उस तरफ कोल का लोडिंग होता था, याद है आप लोगों को, हासीमारा वाले। और उधर क्या है कि क्वार्टर में कोयले का ये जाता था, डस्ट जाता था, याद है। और अभी हम देखें कि यहाँ पर एक क्वार्टर का कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, कब हुआ है? तो जो हुआ है उसके बारे में भी बोलना चाहिए। ये भी एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का एजेंडा था कि हमने क्वार्टर बनवाया है और अभी जो क्वार्टर बन रहा है वो टाइप 2 क्वार्टर बन रहा है, टाइप 1 क्वार्टर नहीं बन रहा है। और बेस्ट फैसिलिटी के साथ, रनिंग वाटर के साथ टाइप 2 क्वार्टर बन रहा है। हम आपको इतना वादा करते हैं कि आने वाले 5 साल में पूरे PG3 सेक्शन में सबसे बेस्ट पॉसिबल टाइप 2 क्वार्टर विथ रनिंग वाटर का प्रोविजन करवा के हम लोग दिखाएंगे। ये एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का कमिटमेंट है। लेकिन कोई आप सपना देखेंगे और सपना को हकीकत में चेंज करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है, और वो परिश्रम हम लोग निरंतर कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बोलते हैं कि इसके बाद आप देखिएगा कि ये जो आप बैंक से सैलरी ले रहे हैं, स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो जिससे आप सैलरी ले रहे हैं, तो इस सैलरी के एवज में आपको कोई टर्म इंश्योरेंस मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन रेलवे सैलरी पैकेज में हर एक रेलवे एम्प्लॉय जो सैलरी होल्डर है उसको 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इस बार पीएनएम में हमें इज्जत नगर डिवीजन का एक एग्रीमेंट मिला, जहां पर बैंक ने बोला कि पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी ईयर के लिए 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस विदाउट एनी प्रीमियम। इस चीज को हमने डीआरएम पीएनएम में उठाया और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि आपका सैलरी के अगेंस्ट में आपको 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए एडिशनल बैंक से मिलेगा, रेलवे फाइनेंशियल सेटलमेंट के अलावा। ये जो आमूल परिवर्तन है, ये जो सोच है, ये एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का सोच है। हर एक रेलवे कर्मचारी को टर्म इंश्योरेंस के तहत विदाउट एनी प्रीमियम उनको ला देना, ये एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का सोच है। लेकिन आप देखिएगा 2 दिन बाद ये सोच जब कंप्लीट होगा
तो कुछ हमारे संगठन के लोग अपना टैग लगा के देंगे যে সততার প্রতীক ইউনিয়ন এই কাজ করেছে। সততার প্রতীকের একটা কথা মনে রাখতে হবে, একদিকে আঙ্গুল তুললে তিনটা আঙ্গুল নিজের দিকে থাকে। যারা নিজেকে সংগঠন বলছে, जो लोग अपने आप को श्रमिकों के हितैषी बोल रहे हैं, वो एनपीएस के आंदोलन के मंच पे मैक्सिमम 15 से 20 लोगों के बीच में वो एनपीएस की बात नहीं करके सीबीआई विजिलेंस की बात करते हैं। ये तो उनका चरित्र है। वो क्या रेल श्रमिकों का काम करेंगे? एनपीएस का मंच बनाते हैं, रेल श्रमिकों का एनपीएस का लड़ाई का मंच बनाते हैं, और आप सीबीआई विजिलेंस की बात करते हैं। एनपीएस का लड़ाई अगर सही मायने में कोई लड़ रहा है तो एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन लड़ रहा है, एनएफआईआर लड़ रहा है, और हमारा ये प्रण है कि एनपीएस नामक अभिशाप को रेलवे के स्टाफ के ऊपर से हटाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक ये नहीं हटेगा एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन निरंतर अपने संग्राम में लड़ता रहेगा। बस एक आप लोगों से अनुरोध है, मेरा दोस्त सुब्रतो भौमिक के नेतृत्व में हासीमारा ब्रांच और आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, हासीमारा के बहुत सारे मुद्दे हैं। कल रात में मैं अपने जनरल सेक्रेटरी के सोच आपसे शेयर करना चाहता हूं। कल रात में हम जा रहे थे करीब 11:30 बजे, ये नीचे के रास्ता से कालचीनी के रास्ता से निकल रहे थे। दो पेट्रोलमैन को उन्होंने गाड़ोपाड़ा में देखा और देख के मुझे बोला रुको गाड़ी। रोक के उस पेट्रोलमैन दोनों भाइयों से बात किया। वो दोनों पेट्रोलमैन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, गाड़ोपाड़ा से आए, ये दोनों भाई था। और इन दोनों भाइयों से जिस तरह से उन्होंने बात किया, जिस तरह से प्रैक्टिकल चीजों को जानने का कोशिश किया, तो गाड़ोपाड़ा का क्वार्टर का समस्या उन्होंने बोला, जो हमने नोट किया है, बहुत जल्दी हम उसका निदान करवा देंगे। और हमारे जनरल सेक्रेटरी का सोच यह है कि साधारण रेल श्रमिक जो दिन रात परिश्रम करके रेलवे की प्रगति में अपना योगदान देता है, उस रेल श्रमिक का जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करना ये यूनियन की जिम्मेदारी है। और हम अपने जिम्मेदारी को बाखूबी जानते हैं। हम वो यूनियन नहीं है जो दूसरे के किए पर अपना टैग लगा के घूमते हैं। हम तो सोचते हैं, हम आगे कदम बढ़ाते हैं, हमारे पीछे लोग आते हैं। ये एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का कैरेक्टर है। एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन के सभी संग्रामी साथियों से अनुरोध है कि आने वाले ट्रेड यूनियन इलेक्शन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान देके आप एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का हाथ सशक्त कीजिए। और आने वाले समय में हमें और बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। एनपीएस नामक अभिशाप को हटाने के लिए हर एक आदमी को एकजुट होकर हमें लड़ाई करना है और लड़ाई करके इस एनपीएस के अभिशाप को हटाना है। बस मैं हमारे रेलवे बोर्ड के हमारे रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के मेंबर, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर और एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी से एक अनुरोध करना चाहूंगा, जो मेरे पास आज मैसेज आया है कि हमारे वेल्डर, ब्लैक स्मिथ जो कि ट्रैक के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। ये हमारा डिमांड है आज इस मंच से, और हम इस विषय में हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी से कुछ सुनना चाहते हैं। इसी के साथ ताली बजाने वाला कम है क्योंकि वेल्डर का संख्या कम है, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, एनपीएस वाले के साथ अगर ओपीएस वाला लड़ाई नहीं करेगा तो कल के डेट में ओपीएस वाले का ओपीएस रहेगा कि नहीं, इसमें डाउट है। ये वर्तमान सरकार का ये नीति है। इसलिए कभी मत सोचिए कि उसको एनपीएस मिल रहा है, मुझे तो ओपीएस मिल रहा है, मुझे उस आंदोलन में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप एकबद्ध होकर एक साथ एक इशू में हर एक स्टाफ एक साथ ना उतरिएगा तो भविष्य में सरकार आपसे ज्यादा काम लेगी और कम पैसा देगी। ये उनका मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी को रोकने के लिए यूनियन निरंतर प्रयासरत है, लेकिन यूनियन के साथ को सशक्त करने की जिम्मेदारी हमारे रेल श्रमिकों का है, हर एक रेल श्रमिकों का है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी एजेंडा में, जो भी इशू में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस इशू में आप लोग सब मिलके यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, इस वैसी को लेके आंदोलन करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हम डिवीजन में बहुत सारे लोकल मुद्दे पर एजिटेशन करने जा रहे हैं, उसमें आपको शिरकत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और रेलवे की प्रगति, देश की प्रगति, यूनियन के प्रगति में अपनी योगदान देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं हमारे
फालाकाटा से भी 2-4 लोग आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हासीमारा ब्रांच के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे तरफ से आप सभी ब्रांच मेंबर्स, ऑफिस बियरर्स की शुभकामनाएं हैं। आने वाला जो टीम बनेगा वो सशक्त टीम बनेगा, एम्प्लॉयज यूनियन के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव टीम बनेगा और मेरा विश्वास है कि हासीमारा ब्रांच आने वाले समय में अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए पथ निर्देशक होगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, मोमिन सैकिया जिंदाबाद। जाना नहीं है। सभी को हमारे एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन परिवार में हार्दिक स्वागत है। ছোট ভাই বলাই আলিপুর থেকে আসা প্রণব এনএফএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বিভিন্ন কর্মকর্তা শঙ্কর হাসিমারা ব্রাঞ্চের রেল কর্মচারী বন্ধুগণ, हासिम जगह कम था, लोग कम बैठा था वहाँ पे, जैसे तैसे मीटिंग करके हम लोग चला गया था। लेकिन आज आप लोग का नौजवान ब्रांच सेक्रेटरी इसने अच्छा वो बोला कि कोरोना पीरियड में उसने घुमा दे, फिर भी लोगों का साथ, आपका डिवीजन सेक्रेटरी का लोगों का साथ जो अटैचमेंट है, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है। छोटा सा ब्रांच है हासीमारा ब्रांच सेक्रेटरी बोला कि इसको बढ़ाना चाहिए। हम लोग आफ्टर इलेक्शन इसको लेके हम लोग बैठेंगे, सोचेंगे, जैसे अच्छा होगा इस ब्रांच के लिए हम लोग करेंगे। लेकिन इतना सारे लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट जिस ब्रांच में 200-300 ज़्यादा से ज़्यादा 300 स्टाफ है, उस ब्रांच का मीटिंग में आप लोग 100 आदमी उपस्थित है। तो मैं बताना चाहूँगा इस ब्रांच का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आगामी दिनों में जो बचा कुचा लोग हैं उसको भी मैं यहाँ पे एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का इस मंच से मैं आमंत्रण करता हूँ, मैं निमंत्रण करता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन में आ जाए और लोगों के लिए काम करे, लोगों को जो मिसगाइड करते हैं उसके लिए उसको भी जाके समझाए। मैं आश्चर्य हो गया, अभी मेरा एक छोटा भाई है, मैं हो नहीं सकता है एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन लोगों का काम के लिए 12 आवर्स उपस्थित रहते हैं, जहां जरूरत है, जहां जब बोलेंगे आपको एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन कैडर और लीडर वहां पे मिलेंगे। रात 1 बजे हो, 2 बजे हो, अब कभी भी टेस्ट करके देखिए, कभी भी आप लोग परीक्षा लीजिए कि मुनीता को हमने रात 2 बजे फोन किया और फोन नहीं उठाए और फोन मतलब उस हिसाब से काम नहीं हुआ, तो आप मुझे इस जगह पे आने मत दीजिए। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकते हो, रात 2 बजे में भी आप किसी आदमी के लिए, मेडिकल के लिए फोन करता है तो उसका रास्ता हम लोग देते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, उसका मतलब सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। जिंदगी चलने के लिए मेडिकल फैसिलिटी, जैसे मिस्टर ने बताया, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम हर जगह पे मैं इंस्ट्रक्शन देकर रखा, कोई भी यूनियन हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, लोग जब आपके पास आएंगे मेडिकल फैसिलिटी के लिए, जब लोग आएंगे उसको मेडिकल असिस्टेंस देना एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का नीति है, एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन का आइडियोलॉजी है। चाहे वो ट्रीटमेंट करने के बाद, अच्छा होने के बाद दोबारा चला जाए उस संगठन में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन लोगों के लिए काम करे, ह्यूमैनिटीज के लिए काम करे। ये हम लोग काम कर रहा है, लोग इसीलिए आकर्षित है। कभी भी हम लोग ने झूठ नहीं बोला कि ये काम होने वाला है। वी नेवर प्ले फॉर द गैलरी। जब गैलरी के लिए लोग खेलते हैं, आउट होकर चला जाते हैं, तो ये काम एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन कभी नहीं करते हैं। एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन जो हकीकत है उसके लिए काम करते हैं। आज शंकर ने बताया, मुझे अच्छा लगा कि वो ट्रैक मेंटेनर था और ट्रैक मैन होके आज इस मंच से आज वेलफेयर इंस्पेक्टर होके, जो डिवीजन सेक्रेटरी वेलफेयर इंस्पेक्टर है, वो भी बराबर का हिस्सेदार होकर बातें बोल रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? उसका जो एक्सपीरियंस है वो बातें बोल रहे हैं। हम लोग बताने से हम लोग बहुत एक्सैजरेट करके भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका हकीकत उसने बताया। हमने देखा, हमने शंकर को देखा, उस जमाने से देखा जब मैं नया डिवीजन, जब मैं नया जनरल सेक्रेटरी बना था, मैं उस टाइम से देखा आता हूँ। जो लोगों का बात समझे, जो समझे कि ये जो 12,60,000 रियल एम्प्लॉय है, ये
रेलवे के लिए अहम हिस्सा है। ये रेलवे का कैपिटल है, न कि कोई स्टेशन, न कि बिल्डिंग, न कि नया बड़े वंदे भारत। ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी की है ये ह्यूमन बीइंग जो है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी, ये रेलवे मैन का प्रॉपर्टी है। ये समझा था और इसीलिए आज ट्रैक मेंटेनर का रिवोल्यूशनरी एक्सचेंजेस आया, ट्रैक मैनों का एक रिवोल्यूशनरी एक्सचेंजेस आया। और 10 साल लड़ाई करने के बाद सिर्फ NFIR और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और NFL एम्प्लॉयज ने इस पे बातें उठाया, स्टेटमेंट दिया, वहां पे जाके मीटिंग किया और 10 साल लगातार लड़ाई करने के बाद आज ट्रैकमैन कैटेगरी में कुछ डेवलपमेंट हम लोग को दिखाई पड़ा। और जो नया लड़का आके बाइक लेके ट्रैकमैन कैटेगरी में नौकरी करने जा रहा है, ये NFIR का बदौलत है कि ट्रैकमैन में हम लोग ने कुछ वर्किंग प्रतिशत बढ़ाया, कुछ पैकेज हम लोग ने दिया, कुछ अलाउंसेस हम लोग ने बढ़ाया। इसके लिए आज ट्रैकमैन कैटेगरी में मैंने बोला कि 30-40% डेवलपमेंट हम लोग ने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि ये कैटेगरी इतना एक अहम पड़ता है। तो मैं इतना एक खतरनाक जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये लोग को सर्विस दे रहा है, नाइट पेट्रोलिंग नहीं होगा तो गाड़ी चलना असंभव है। ये बातें महसूस करके आज हम लोग का ट्रैक मेंटेनर भाई अपना जीवन बलिदान देने के लिए भी आगे बढ़ रहा है, जीवन बलिदान दे रहे हैं। हर दिन एक ट्रैक मेंटेनर पेट्रोलिंग में, पूरा इंडियन रेलवे में एक ट्रैक मेंटेनर आत्म बलिदान दे रहा है, उसका जीवन जा रहा है। लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रहा है? कुछ किया? आज तक सरकार ने उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज डिक्लेयर नहीं किया। कोरोना काल में आप लोग को याद है, पूरा भारत वर्ष से पूरा दुनिया बंद हो गया था, पूरा दुनिया में लोग काम करना बंद कर दिया। नया कंसेप्ट आ गया कॉर्पोरेट सेक्टर में, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन रेलवे मैन का जो कंसेप्ट है, रेलवे मैन का कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ट्रैक मेंटेनर के लिए, खलासी ये पॉइंट्समैन के लिए, सिग्नल मैन के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है। वो स्पॉट पे जाके वर्क एट स्पॉट करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी चलेंगे। और वर्क पर एट स्पॉट करने के लिए हम लोग ने मोटिवेट किया, हम लोग गया हर एक लोगों के पास जाके बोला कि गाड़ी चलाना पड़ेगा, खाना का व्यवस्था लोगों को लिए करना पड़ेगा, मेडिसिन के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। और मैं सारे ट्रैक मेंटेनर भाई, सारे रेलवे एम्प्लॉयज को धन्यवाद आज भी देता हूँ। बहुत लोगों का जान चला गया, बहुत लीडर का जान चला गया, उसका बावजूद रेलवे एम्प्लॉयज ने उससे हटा नहीं, डटे रहे और गाड़ियां चलाया। ये ट्रैक मेंटेनर, ये रेल एम्प्लॉयज करते हैं, इसके लिए हम लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग एजुकेटेड आदमी है, हकीकत जो है बताइए। जो आदमी जो फेडरेशन आंदोलन से भगे हुए हैं, आंदोलन करने से डरा हुआ है, उस फेडरेशन ने लोगों के अच्छा काम क्या करेंगे ये सोच लीजिए। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बार जो इलेक्शन होगा, सिर्फ NFL एम्प्लॉयज का रहने के लिए आप लोग व्यवस्था कीजिए। जो आपका बात सुन के आंदोलन में उतरेंगे, जो आपका बात सुन के लोगों को दिखाएंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट कितना शक्तिशाली होना चाहिए, ये हम लोग दिखाएंगे। भारत का लोगों को हम लोग करेंगे और समाधान भी लाएंगे। इसी को बोल के मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा व्यवस्था जरूर कीजिए कि दूसरा इंडियन का जगह नहीं रहे। सिर्फ NFL एम्प्लॉयज ने तिरंगा पताका अलीपुरद्वार डिवीजन में तुम्हें ऐसा व्यवस्था जरूर कीजिए। उसी को बोल के मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं दो और साथी जो हमारे संगठन के साथ आज जुड़ेंगे, मैं उनको अनिल कुमार जी को स्वागत कर रहे हैं, हमारे यशस्वी जनरल सेक्रेटरी साहब। जोरदार हाथताली के साथ उनका स्वागत करें। अभी जोगेश्वर मंडल जी को स्वागत कर रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार SS मुजराई, प्लीज कम टू द स्टेज। और हमारे इस सेक्शन में एक मेरे बहुत चाहते भाई राजू बाल, बहुत ही प्यारा भाई है, बहुत एफिशिएंट है, मैं उसके वर्किंग से बहुत खुश रहता हूं। राजू बाल, एडवाइजर ऑफ दिस पैनल, प्लीज कम टू द स्टेज। अब प्रेसिडेंट हासीवाड़ा ब्रांच कौन होना चाहिए? काम ताकि नहीं तो फुलदेव राव, प्लीज कम।
एक बार जोरदार ताली से। वर्किंग प्रेसिडेंट मेरा छोटा भाई सुशोभन नरचिनारी, एक बार जोरदार हाथ ताली से स्वागत होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट मेरा दिल के करीब प्रशांत कुमार झा, आज इसको बोले पैजामा पंजाबी पहन के आएगा। वेलकम टीआई साहब। वाइस प्रेसिडेंट राजेश कुमार एसएस डलगांव, प्लीज कम। ज्वाइंट ब्रांच सेक्रेटरी इफेक्टिव लड़ाकू सबके बीच में प्यारा संतोष कुमार ठाकुर, प्लीज वेलकम। और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी राकेश कुमार एसएम हासीमारा, एसएस हासीमारा, कहां गए राकेश। और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरा दमनपुर का भाई, नाम बोलना पड़ेगा, राधाकांत पेगू, प्लीज कम। असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी शिवनाथ राम, लेकिन शिवनाथ राम अभी उपस्थित नहीं है, एक बार हाथ ताली दे दीजिए क्योंकि शिवनाथ राम उपस्थित नहीं है, हेलमेटन में कीमैन का ड्यूटी कर रहा है। और एक असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी मेरा भाई विकास मंडल, प्लीज वेलकम टू द स्टेज, विकास मंडल। और एक असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री अतीन्द्र दास, प्लीज कम टू द स्टेज। और एक असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी फेसबुक का मीडिया सेल का सबसे टॉप दीपंकर देवनाथ, प्लीज वेलकम दीपंकर देवनाथ।